Okay, hi guys. I don't know. I will be able to upload this video any of the time or not. But yeah, I am making it because I felt like doing it. Because right now I have no one around me who will, try to console me or try to be with me or try to stand beside me or something. But yeah, I am going through the worst phase of my life where I have lost my dad on 26th August 2020 due to COVID. And right now I am a COVID positive, and my mother is also a COVID positive. And yeah, I just wanted to share my story with you all. I know there are many of the girls or in many of them are facing the same issues or in a different way or in the same way or little bit less or more, whatever it is. So for any of us, it's very very difficult time which we go through right now. It's been 10 days that my dad is no more, and I feel the worst. I feel the worst. Each and every day is passing, and I just feel like I don't have anyone in my life. I try to control myself only because I have my mother who is also trying to be strong, but I am seeing day by day becoming very very weak. She's just sitting and seeing me, watching me, just doing whatever I am doing, just she's seeing. But I know what she is facing. Okay, so I just wanted to tell that on 25th August, I got to know my dad is a COVID positive patient. I took him to the hospital. After that, only I got to know, and we didn't get time to save him. Also, by 26th evening, I got to know that he's no more. By the time we got to know that he's no more, before that, only I got to know that I am a COVID positive. So I had to rush back to home to stay home quarantined, paying all the bills and everything. And I came home, and from that day, I am inside this four walls with my mother. I have not seen my dad. I have not seen him for the last time, also. This is what happened with us. And basically, I stay in Bangalore, and I don't have any of my family members who are here. And whoever my family members are all in Kolkata, and they expect me to come back there. They'll take care of me or anything which they feel like telling. I don't say that they are wrong, but yeah, right now it is a very difficult situation where I don't know, I kind of not realize anything, that I have lost someone in my life, and losing him, it is like we have lost a support system, because I am not stable right now. I just completed my graduation. I'm trying my luck, or I'm trying my level best to be in a good position, but it is taking a lot of time. And the plans were like, my dad told that he will take care of the family till the time I take care of my studies and everything, and I told yes, I will be taking care of it. And all that shattered within a second, and I don't know what will happen next. So right now I'm at home. I'm very much um shattered with everything. I know I'm not looking good. My hairs are just frizzy and everything. But I don't care. For me right now the situation is so worse that I really don't care. I don't have any such feeling inside that I should look good or anything. I just wanted to tell everyone that, see, you will never know what you go through or what other person is going through. Please try to respect them. For me, I have lost many things in my life in this year, and this year is being very worst for me. And I don't know how to say, how to do, but yeah, after my dad's death, there were many people who tried helping me out a lot. I will never be able to uh, pay back the things which they have done for me. Yeah, they cannot come inside, they cannot see me, they cannot touch me, they cannot sit beside me and console me. I know that no one is
No one cannot, I cannot risk anyone's life for my comfort. But yeah, this is the worst part. So please try to respect people who are going through this. Please do not discriminate. Do not see them as if you have not, you are just seeing someone who is some untouchability. The untouchability which was practiced right now, it is practiced with the COVID patients, and I know the feeling, it is the worst feeling ever. Please do not do that. They are not going to harm you, or they are not going to do anything wrong to you. Please try to help them out, maintaining a distance. If you maintain distance, you will be fine. COVID will not touch you. So please do that, please. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू तुम्हारीज लाइफस्टाइल। तो मैंने आप लोगों को कल बोला था कि मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कल मैंने वीडियो बनाया भी था, बट कुछ ज़्यादा लेंदी जा रहा था वो, इसीलिए। तो वीडियो की शुरुआत में आपने एक वीडियो देखा जो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट टाइम का वीडियो है। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसी टाइम से शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले जो भी प्रॉब्लम्स थे तब तो लगता था कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली जो प्रॉब्लम था वो था कि पापा के चले जाना। तो पापा चले गए, तो कैसे गए, क्या हुआ, वो सब कुछ बात मैं बताऊंगी। बट उस वीडियो में तो आपने देखा ही होगा कि मैं कैसी सिचुएशन में थी। तो ये जो सिचुएशन से मैं यही आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि हर एक मोमेंट में जब पापा चले गए, मैं रियलाइज़ करती थी उनका वैल्यू। तो ये बोलते हैं ना कि आप लोग किसी इंसान का जो वैल्यू है उनके चले जाने के बाद, या कोई चीज़ की जो वैल्यू है वो खो जाने के बाद, या वो नहीं होने के बाद आपको पता लगता है कि उसकी क्या वैल्यू है। तो हाँ, मेरी ज़िंदगी में भी मैंने तब रियलाइज़ किया। कभी कभार गुस्सा हो जाती थी पापा के ऊपर कि यार उन्होंने ये नहीं किया, या वो मुझे ये नहीं देते, वो नहीं देते। बट उस टाइम पे समझ आ रहा था कि जितना भी मिला था वो बहुत ज़्यादा था। अब जो कुछ भी नहीं है वो कैसे तुम डील करोगी। बट हाँ, उस टाइम पे कहीं से तो स्ट्रेंथ था, सपोर्ट थे कुछ मेरे फैमिली फ्रेंड्स से बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने मेरा। मैं उन लोगों से भी आप लोगों को इन फ्यूचर के वीडियोस में मिलाऊंगी ज़रूर। तो मैं बहुत ज़्यादा मैं मतलब कोशिश कर रही थी कि मैं कोप अप कर लूँ सिचुएशन से। बट हाँ, कोप अप भी किया, बहुत कुछ सीखा, गवर्नमेंट ऑफिस से कैसे चक्कर मारते, ये सब कुछ सीखा मैंने। और उसके साथ साथ मैंने ये भी सीखा कि माँ बाप की क्या वैल्यू होती है। अगर एक कोई इंसान नहीं है तो क्या सिचुएशन से तुम लोगों को गुजरना पड़ता है, ये मुझे समझ आया। हर एक मोमेंट पे लग रहा था उस टाइम पे हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। तो सबसे बड़ी चीज़ उस टाइम पे यही हो गई थी कि क्योंकि हम लोगों के पास समझ नहीं आ रहा था कि पैसे कैसे आएंगे, बिकॉज ही वॉज द ओनली इनकम सोर्स। मैं कुछ ज़्यादा कमाती नहीं थी, और उस टाइम पे तो मेरे पास जॉब नहीं था बिकॉज ऑफ द कोविड। तो मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करने लगी। हम लोग अकेले रहते हैं, मैं और मेरी मम्मी बैंगलोर में। तो हम लोग अकेले रहते थे। तो उस टाइम पे मेरे पास जॉब नहीं था, तो हम लोगों ने मैंने जॉब ढूंढा। तो मैंने एक MNC में जॉब किया। उससे पहले मैंने 15-20 दिन के लिए कहीं और भी किया था, फिर उसके बाद मैंने MNC में ज्वाइन किया था। तो ये सब बातें तो एक है। बट इसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगी कि मतलब जब ये सिचुएशन आता है किसी की ज़िंदगी में, तो आप लोग कभी भी हार मत मानिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मेरे साथ क्यों हुआ। हमारी एक आदत है कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं लोगों के ऊपर, लोगों के ऊपर मतलब अपने परिवार वालों के ऊपर रहना ज़रूरी है। डिपेंडेंट पे तो दुनिया में बहुत सारे डिपेंडेंट रहते हैं। बट ये भी सोच के रखिएगा कि अगर बाई चांस, हम लोग नेगेटिविटी नहीं सोचते हैं, बट अगर आप नहीं सोचोगे तो आपको जब सच में वैसे सिचुएशन आ जाएगा ना, आप बहुत टूट जाओगे। तो आपकी ज़िंदगी में आपको पहले से एक चीज़ सोच के रखनी है कि अगर ये इंसान नहीं रहा तो मैं कैसे रहूँगी, मतलब मेरी सिचुएशन क्या होगी, क्या मेरे पास इनफ फंड्स है टू लिव माई लाइफ,
क्योंकि ये तो नहीं है कि मैं चली गई, मतलब वो चले गए तो मैं भी चली जाऊंगी। जब तक आपका सांस अंतिम सांस है, आपको रहना पड़ेगा। तो हम लोगों को पॉजिटिविटी के साथ रहना है। यू हैव टू मूव ऑन। जिंदगी मिली है तो जियो। पता है दुख होता है, उनकी मेमोरीज, उनकी गुड मेमोरीज को अपने साथ में रख के उसके बारे में सोच के आप जियो। आप ये सोचिए कि अगर आप वो आपके साथ होते तो वो आप क्या चाहते कि आप कैसे रहो, वैसे वो सब सोचिए कि हाँ वो चाहते कि मैं खुश रहूं तो मैं खुश रहूंगी। उनको साथ में लेके, उनकी यादों को साथ में लेके खुश रहिए। तो उसके बाद मेरे साथ हुआ पॉजिटिव थिंग्स, मुझे जॉब मिला, बट उतना भी कुछ खास सैलरी वाला जॉब नहीं था, बट हाँ मैं अपनी मम्मी सस्टेन करने की तरह मैंने जॉब ढूंढा। बहुत सारे चीज़ों में मैंने लड़ाई किया, पढ़ाई कर रही थी, लोगों से मिल रही थी। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि मतलब ये तो अभी इमोशनली बहुत वीक है, इसकी इमोशनल को लेके खेला जाए। मैं मेरे साथ बहुत खिलवाड़ भी हुआ है और मैंने बहुत कुछ फेस भी किया है। और हाँ, तो मैंने जो भी सिचुएशंस थे उस टाइम पे, मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसको मैंने किया। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मेरे स्ट्रेंथ बने। उन्होंने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग वे में बात किया मेरे साथ। बट मैं अंदर से तो मुझे पता लग रहा था कि क्या सिचुएशंस चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने उसके बीचों बीच बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइसेस भी किए, बट ओके फाइन। बट सबसे बड़ी सेक्रीफाइस तो मेरी हो ही गई थी। हर एक मोमेंट में पापा की याद आती थी। डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा याद आती थी, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता था मैं क्या बोल क्या रही हूँ, कर क्या रही हूँ, ये करना भी चाहिए या नहीं। सो अकेले हम लोगों को ये सब डिसीजन मेकिंग जब सडनली दे दी जाए ना, अगर पहले से ही तुम्हारे डिसीजंस को माना जाता था तो यू वुड हैव बीन एक्सपीरियंस्ड, बट सडनली हर एक डिसीजंस जो पापा लेते थे वो सब कुछ मुझे लेना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर का जो दुनिया है वो मैं ही देख रही हूँ। तो बाहर की दुनिया की जो डिसीजंस होती है वो कुछ ज़्यादा टफ बन रही थी उस टाइम पे। बट हाँ, कोई तो स्ट्रेंथ मेरे अंदर आया था उस टाइम पे। ये स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आप देखिएगा कि आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी होगा, ज़रूर होगा। थोड़ा वेट करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो ठीक है, मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। यू आर वेरी लकी दैट इफ़ यू हैव बोथ ऑफ योर पेरेंट्स। व्हेन यू लूज़ वन ऑफ देम, it's just the worst. And there are people who doesn't have both of them. I salute to you people that you don't have both the parents, but still living in this world with this positivity. I know there are many people who are very positive, and I have also learned through them. I have learned through the people who have lost everything in their life, but still they are trying to cope up with the life, trying to live the life. So hats off to you people, whoever is watching this video. If you are the one, please do take my respect from a deep मैं अपनी डेप्थ ऑफ माई हार्ट से मैं आपको बोलना चाहूँगी कि यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब, एंड thank you for motivating and inspiring people like us. And I am trying to I don't want to inspire, I don't want to tell anyone that I am going to inspire you, but I am going to give you some positivity to live the life to the fullest. And please be happy, please respect your mom and dad, and do not get angry on them. कभी भी ज़्यादा गुस्सा मत होइएगा उनके ऊपर, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और पॉजिटिविटी फैलाइए, पॉजिटिव रहना शुरू कीजिए। देखिए सब ठीक होगा, ज़रूर होगा। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं भी उसी डिप्रेशन से निकली हूँ। तो ये डिप्रेशन जो रहता है ये बस हमारी मन की जो मन में रहता है कि यार क्या है। अगर हो सकता है कि आपके चारों ओर आपको लोग डिप्रेशन की जैसी बात कर रहे हैं कि लाइक जिससे आपको डिप्रेशन हो रही है, जस्ट डोंट केयर। आपको क्या लगता है, आप कैसे हो आपको पता है, आप वैसे रहिए। लोग आपको
देखने या खाना देने नहीं आएंगे। अपना कमाई आप खुद खाते हो, अपना ज़िंदगी आप खुद जीते हो। तो प्लीज़ डू आई मीन फॉलो दिस एंड बस इतना ही मुझे बोलना था। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अभी न्यू नॉर्मल के साथ जिए और कुछ अच्छा कीजिए, ताकि इस दुनिया में कुछ तो आपके नाम में, कुछ तो आपके आपके वजह से कुछ तो चेंज हो। अगर एक भी 0.01% भी या 0.001% भी हम चेंज कर पाए तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। छोटे से शुरू कीजिए, जैसे कि मैंने शुरुआत की है। ज़रूर होपफुली हम लोग ज़रूर बड़े बनेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होपफुली मैं आगे भी बहुत अच्छे वीडियोस के साथ आने की कोशिश करूँगी। ज़रूर कुछ अच्छा एक्सपीरियंसेस मेरे शेयर करूँगी, जिससे आपको भी कुछ आइडियाज़ या कुछ सीख मिले। So thank you for watching this channel, and please do like, share and subscribe to my channel, that is Tamali's Lifestyle. So we'll meet you soon. Thank you.